everyone, welcome to Drishti CUET and welcome to your physics revision classes. I hope everyone is doing great and you all are revising, you all are practicing all your physics chapters very nicely. So now it's time to revise your topics, right? And if you are doing this revision based on your sample paper and if you are doing this revision by solving the questions, it will be more and more beneficial for your exam. Why? Because when you are revising your syllabus with the help of questions now, you will get an idea, right? First of all, though, you get to know what type of questions you are going to get in your exam, how the questions are framing, right? What are the language of your questions, right? And yes, you will also get to know the topics, right? Like which topic they will ask you more frequently questions. So just try to solve at least 5 previous year papers for your exam. Okay. Here in this session, we are about to solve your CBSE sample paper. So with the help of your CBSE sample paper, right, I'm going to make you revise your physics topics, right? So one by one, let's solve each questions and one by one, let's discuss the concepts as well. Okay. Now you all know the pattern of your board exam, right? That the board exam consists of your 33 physics questions. All the questions are compulsory and you have a 5 section. Section A, multiple choice question, consists 1 mark. So total, I guess, 16 questions maybe you will get in section A. Then you have a section B, right, which consists of 5 marks and each question is of 2 marks. So total 5 questions you have section B. Section C contains 7 questions and each question 3 mark. Section D is a case based section where you will get 2 questions and each questions 4 marks. And then you have section E, which contain 3 long answer questions of 5 marks each. Okay. So no overall choice. Okay. You will get the choice within the questions. So now guys, here देर आर सम वैल्यूज गिवन. देखो ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको ऑलरेडी गिवन है पेपर में ही, ठीक है. लाइक यू विल बी गिवन द वैल्यू ऑफ सी, स्पीड ऑफ लाइट, then mass of electron, mass of proton is also given in the paper, charges of electron is given in the paper, mu naught, h, epsilon naught, Avogadro number. So the value is given. Okay, so wherever it is required, you can see, you can check it from here. Otherwise, I know that by practicing so many questions now, you are memorize these value, but still in your exam, since many students got panic, so they just forgot these value, so you can just take a reference here. Okay, so now let's begin with the question number 1 from section A. Okay, read the question. If a hollow sphere, right, and a solid sphere of aluminium and copper of equal radii are in electrostatic equilibrium, then which of the following statement is true? ठीक है, तो आपको यहां बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा. क्या कह रहे हैं? इफ अ चार्ज्ड hollow sphere, so now you have a charged hollow sphere and a solid sphere of aluminium and copper. So एक तो आपके पास हॉलो स्फीयर है एंड आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है जो एल्युमिनियम और कॉपर का बना हुआ है. बोथ ऑफ देम हैविंग इक्वल रेडियाई, राइट. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? बोथ द स्फीयर हैविंग इक्वल चार्ज. हॉलो स्फीयर हैव मोर चार्ज देन द सॉलिड. Aluminium sphere will have more charge on its surface than copper. Hollow sphere is also made up of aluminium, then it will have more charge. So ये statement तो यहीं गलत हो गया. ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है कि जो hollow sphere है वो aluminium का बना है. ठीक है, आपको बताना है which of the following statement is true. Just think a little bit and then give me the answer.
Guys, here option number A is, correct. ठीक है, both the sphere having equal charges. See, like whenever the two body is in equilibrium, right? तो जब भी दो बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में होती है, दे हैव अ सेम पोटेंशियल, ठीक है, उनका जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, एंड वी नो दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू व्हाट, C by Q, ठीक है. सो you know that where C of a sphere, like the circumference of the sphere is 4 pi epsilon naught r. So basically यहाँ पे वो फैक्टर है ही नहीं, तो ये इस पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा. सिंपली अगर कोई दो बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो दोनों पे चार्जेस इक्वल होंगे, यहीं से आंसर आ गया. ठीक है, नेक्स्ट. A coil contain right. So a coil contain n turns of insulated copper wire of diameter d and resistivity rho wound on a cylinder of diameter d. ठीक है, तो एक सिलेंडर है, राइट, एक सिलेंडर है एंड जो सिलेंडर का डायमीटर है दैट इज d. अभी इस सिलेंडर पर कॉपर वायर, the coil contain n turns of insulated copper wire of diameter d and resisted wound on a cylinder. तो एक सिलेंडर पर हमने कॉपर वायर को क्या किया है, लपेट दिया है. एंड व्हाट इज द डायमीटर ऑफ कॉपर वायर, स्मॉल d. व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ कॉइल ऑफ कॉपर वायर. तो यहां से लेके यहां तक टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना है कॉपर वायर में. रेजिस्टिविटी इज गिवन रो. ठीक है, सो आपको यहाँ पे क्या क्या गिवन है, एक तो देखो डायमीटर ऑफ कॉपर वायर गिवन है, and diameter of cylindrical cylinder diameter of cylinder कितना दिया है, कैपिटल D. We know that the diameter of cylinder is more than diameter of copper wire. ठीक है, number of turns भी given है n and the diameter is more than d. इतनी वैल्यूज, इतनी चीजें हमें ऑलरेडी गिवन है. नाउ यू नो दैट अब अगर हमें लेंथ, इस वायर की लेंथ निकालनी है, ठीक है, सो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर. सो यू नो दैट लेंथ ऑफ वायर इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, राइट, कितने उसमें कॉइल में टर्न्स हैं, n इनटू सर्कमफेरेंस ऑफ सिलेंडर. ओके, सर्कमफेरेंस ऑफ सिलेंडर. सो हियर L क्या हो जाएगा, n. नाउ व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ सिलेंडर, पाई इंटू d, दैट मीन्स पाई इंटू r. सिलेंडर का जो सर्कमफेरेंस होता है पाई इंटू r, एंड इट कैन ऑल्सो से दैट पाई इंटू d. लेंथ हमारा हो गया पाई इंटू d. नाउ वी नो दैट द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो L बाई ए. तो L इज गिवन n पाई d बाई a. एरिया, a इज व्हाट, एरिया. एरिया क्या होता है, yes, what is area guys, पाई डी स्क्वायर. ठीक है, एरिया क्या होता है सर सिलेंडर का, d स्क्वायर पाई बाई ए. ओके, सो नाउ जो पाई बाई 4 होगा ये, तो जब आप इसको कैंसल आउट करेंगे सो यू विल गेट द आंसर, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 रो एन डी बाई डी स्क्वायर.
ठीक है, तो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्विकली नोट डाउन। यहां पे कंफ्यूजन हो रही है, ये कैसे आया एरिया? देखो एरिया क्या होता है सिलेंडर का, पाई डी स्क्वायर, ठीक है, दिस इज द एरिया ओनली ना, पाई डी स्क्वायर। तो अभी हमें क्या लेना है, डायमीटर है, ठीक है, तो ये d/2 हो जाएगा ना, पूरा जो रेडी उसका लेंथ है, ठीक है, तो d/2 ले लेंगे, राइट। सो दैट इज पाई डी स्क्वायर बाई 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द फेजर, अब देखो यहां पे क्या कह रहे हैं, if the phasor diagram of a device connected to AC supply is shown in the figure, which of the following statement is true? आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो वोल्टेज है लाइक एंड दिस इज द करंट, ओके, एंड 90 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में। when the frequency of AC source is increased, then the impedance of the device decreases। जब हम AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, ठीक है, इम्पिडेंस क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, सो इम्पिडेंस डिक्रीज हो जाता है। दिस डिवाइस बिहेव एज कंडक्टिंग वायर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस डीसी सोर्स। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इज डिक्रीज, इम्पिडेंस डिक्रीजेज। द डिवाइस स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो यहां पे क्या दिख रहा है स्टेटमेंट में हमें, इन फेजर डायग्राम द करंट लीड्स टू द current is leading from voltage. So basically when the frequency of AC source is increased, then the impedance, ये तो यार देखो हमारा AC सोर्स की जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस कम होगा, तभी तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी ना। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, which of the following statement is true for the radio waves and gamma rays? बताइए, which of the following statement is true for radio and the radio waves and the gamma rays? Question from electromagnetic wave। मैंने कहा था आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो इसी तरह से मिलेंगे। यू हैव टू रिमेंबर द लाइक इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड डिक्रीजिंग द वेवलेंथ, ये जो सीक्वेंस है आपको वैसे याद करना था। सो विच इज ट्रू फॉर द रेडियो वेव एंड द गामा रेज? नाउ वी नो दैट रेडियो वेव हैज हायर वेवलेंथ, lower frequency. Gamma rays having highest frequency but lowest wavelength. Now the energy of gamma rays, अभी एनर्जी के फॉर्म में है, E is equal to what? H into mu, H into mu, ठीक है, mu क्या है? फ्रीक्वेंसी है। सो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंड वी नो दैट गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। सो द एनर्जी ऑफ गामा रेज इज लेसर देन दैट ऑफ रेडियो वेव। अब अगर एनर्जी के टर्म्स में दिया गया है तो हम कह सकते हैं ना कि भाई गामा रेज की, फॉर गामा रेज फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी तो ज्यादा ही होगी, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी कम तो एनर्जी भी कम होगी, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वेवलेंथ, ठीक है। सो एनर्जी ऑफ गामा फर्स्ट तो गलत है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव इज हायर देन गामा, रॉन्ग, रेडियो वेव and the gamma rays having same energy, wrong, energy of radio wave is lesser than the gamma rays, correct। so with the help of this formula you will get the value। आई बात समझ में कैसे क्वेश्चंस हो रहे हैं? चलिए नेक्स्ट। नाउ हियर यू हैव अ प्रिज्म, ओके, a glass prism has internal angle given 45 degree, 45 and 90 degree. These are the internal angles given in the prism.
The glass has a critical angle 45 degree. Which of the following ray diagram depicts the possible path of the light through the prism? Yes. दो ऑप्शन इधर भी गिवन है, ठीक है. सो उस द सेम क्वेश्चन हैज, यहां पे भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ठीक है. सो वी हैव 4 ऑप्शंस, these two and these two. देखो क्या कह रहा है, which of the following ray diagram depicts the possible path of light through the prism. तो यहां पे हमें क्या दिख रहा है, ए वाले कंडीशन में क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस हमें दिख रहा है यहाँ पे, बिकॉज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल कितना है, 45 ही दिया हुआ है, ठीक है. तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, ये ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ए इज करेक्ट वन. ओके, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द लाइट, यहां पे भी नेक्स्ट पेज पे हमें जाना पड़ेगा ऑप्शन के लिए. The light from a monochromatic source is incident on a single slit. ठीक है, तो एक सिंगल स्लिट में मोनोक्रोमेटिक सोर्स से लाइट आ रही है, and resulting the diffraction pattern as viewed on a screen, and we will see such diffraction pattern. हमें ऐसा diffraction pattern दिख रहा है. The graph shows the variation of the intensity with the distance on the screen. तो ग्राफ में हमें ये जो दिख रहा है इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में हमें ग्राफ दिख रहा है. द विड्थ ऑफ द स्लिट इज इंक्रीज्ड. अभी क्या किया गया, स्लिट का विड्थ इंक्रीज कर दिया गया, कीपिंग द इंटेंसिटी सेम. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट. तो अगर हमारा ये सिंगल स्लिट है, ठीक है, और यहां से जब मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट गई है तो वी विल गेट सच पैटर्न. ठीक है, हमें कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिला. अभी आपने क्या किया, ये जो स्लिट का डिस्टेंस है ना, विड्थ, इसको आपने बढ़ा दिया बट इंटेंसिटी रिमेन सेम. ठीक है, तो यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट ग्राफ रिलेटेड टू इंटेंसिटी एंड द डिस्टेंस. थोड़ा सा सोचिए एंड देन ट्राई टू आंसर. These are the two graphs. Then here we have two more graphs. Okay. देखो, so we know that कि जब हम स्लिट का विड्थ इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ेगा. ऑन इंक्रीजिंग विड्थ स्लिट, the amplitude increases and intensity is directly proportional to amplitude. तो अभी क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो इंटेंसिटी भी बढ़ेगा. तो ऑन इंक्रीजिंग डिस्टेंस, सी द एम्पलीट्यूड and the intensity both increases. Okay. Next, which of the following transition correspond to the emission of the radiation of the maximum wavelength? अभी ये आपको बताना है कि इनमें से which of the following transition correspond to the emission of the radiation of maximum wavelength. ज्यादा से ज्यादा वेवलेंथ का एमिशन कहां से होगा. बहुत सिंपल है. सबसे पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि whenever the electron jumps from lower to higher orbital, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, this is the orbital number 1, orbital number 2, orbital number 3, 4, 5, right? So now you know that whenever the electron jumps from lower to higher orbital, the energy, what happened to the energy? It correspond to the absorption of energy. यहाँ पे क्या होता है, जब एनर्जी हम एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी होगा तभी तो हम जंप कर पाएंगे ना. So whenever the electron jumps from lower to higher orbital,
there will be a absorption of energy. So see, in this case, from this, an electron jumps from here to here. Here also electron jumps from here to here. Here also electron jumps from here to here. So usually in case 3, 5 and 6, right, यहाँ पे क्या हो रहा है, electron jumps from lower orbital to higher orbital, therefore energy absorbed. So now what happened? Question is, the transition correspond to the emission of radiation. So option में अगर हम देखें तो 3 cancel हो गया, right, and this option cancel out, right. Now whenever the electron jumps from higher to lower orbital, right, the energy releases or you can say emission takes place. ठीक है, तो emission होगा यहाँ पे. Now you can see that here the emission in this case, you will see emission in this case and you will see emission in this case. Now the energy gap in this case E1, in this case E2, right, and here you have E3. Okay. So the energy difference between E1 is having higher energy difference than E2, then E3. ठीक है, तो जितना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा, right, the maximum you can say that the maximum difference in the energy, the minimum wavelength, you can say the minimum wavelength of light emitted. ठीक है, तो or you can say that the maximum emitted wavelength correspond to minimum energy difference. इसको लिख लीजिए, maximum emitted wavelength correspond to minimum energy. तो जिसकी सबसे कम एनर्जी होगी उसका सबसे ज्यादा एमिशन होगा वेवलेंथ. ठीक है, सो दिस 3-1, दिस वन इज द करेक्ट आंसर. इसकी सबसे कम है. ओके, नाउ yeah. Now see this. Okay, this is the visually like that question, so just leave it. Moving to question number 8. Easy है, हो पा रहा है क्वेश्चन अभी. So 1 marks questions are easier, right? चलिए, now अभी आपको बताना है, a charged particle is projected along the axis of a current carrying loop. Okay, so a charged particle is projected along the axis of a current carrying loop. Which of the following statement is true? The acceleration of the charged particle will depend on the velocity with which it is projected. Acceleration of the charged particle will depend on the magnitude. Charged particle depend on the radius, or the charged particle will move with constant velocity. Okay. Question में आपको क्या बताना है? Which of the following statement is true? तो अगर कोई charged कह सकते हैं एक current carrying loop है and charged particle is projected along the axis of a loop, तो अगर axis पे हम उस loop के axis पे charged particle को project कर रहे हैं, then the charged particle will move with constant velocity, guys. The charged particle will move with constant velocity only. Now question number 9. ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले सब क्वेश्चंस है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस हैं. ओके, नाउ 2 स्मॉल आइडेंटिकल मैग्नेट्स आर अलाउड टू फॉल फ्रीली. अभी क्या कह रहे हैं, 2 स्मॉल आइडेंटिकल मैग्नेट है एंड उनको एक साथ फ्रीली फॉल किया गया.
one through a vertical solenoid of 20 meter made of copper and another in air through the same vertical distance. The time taken by the two magnet to fall will be. ये भी आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है. थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा. देखो, हमें पता है कि हमारे पास दो आइडेंटिकल मैग्नेट है एंड दे अलाउड टू फॉल फ्रीली वन थ्रू अ वर्टिकल सोलेनॉइड, ठीक है, ऑफ 20 मीटर मेड ऑफ कॉपर. तो अगर हमारे पास सोलेनॉइड है 20 मीटर का जो कॉपर का बना हुआ है, ठीक है, तो हमें पता है कि जो हमारा सोलेनॉइड होता है, राइट, दे 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 इंड्यूस, वो क्या करेगा, उस मैग्नेट की वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा. सो व्हेन द मैग्नेट इज फॉलिंग वर्टिकली, राइट, तो द सोलेनॉइड में ना ईएमएफ इंड्यूस होगा एंड अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या करेगा, अब अपने इंडक्शन को रोकेगा, अपोज करेगा मोशन को, ठीक है. तो वहां पे क्या होगा, मोर फॉर द मैग्नेट फॉलिंग थ्रू द सोलेनॉइड, तो वहां पे सोलेनॉइड में ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से लेंज लॉ लगेगा और वो अपोज करेगा. दैट्स वाई यहां पे स्लो मूवमेंट होगा, ठीक है. नेक्स्ट, द ईएमएफ जनरेटेड बाय एन एसी जनरेटर इज गिवन बाय V is equal to V naught sin omega t, right, where omega is angular frequency. What will be the EMF if the angular frequency is doubled? Okay, आपको बता रहा है EMF क्या होगा जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा. बहुत आसान सा क्वेश्चन है. अभी देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको ये इक्वेशन दिया है, ये हमारा EMF का, इंड्यूस EMF का इक्वेशन है AC के लिए. What will be the EMF if the angular frequency is doubled? Since भाई जब हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा तो ईएमएफ भी तो डबल ही हो जाएगा ना, राइट. एंगुलर फ्रीक्वेंसी डबल होगा तो ईएमएफ भी डबल हो जाएगा. ओके, बिकॉज कैसे, हमें यहाँ पे पता है वी नॉट क्या होता है, वी नॉट इज इक्वल टू एन ए बी ओमेगा. ये दिस इज आवर वी नॉट ना. सो इफ यू डबल द एंगुलर फ्रीक्वेंसी देन एन ए बी 2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी. तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी तो डबल हो जाएगी. सो यू विल गेट 2 वी नॉट. सो इंस्टेड यू कैन राइट डाउन 2 वी नॉट साइन 2 ओमेगा टी. बस कुछ नहीं था इसमें, only you have to place a value. The ratio of the nuclear density of two nuclei having the mass number 8 and 27 is. चलिए बताइए. अगेन बहुत इजी सा क्वेश्चन है. प्रॉपर्टीज अगर आपने न्यूक्लियस में पढ़ी होगी तो आप पटाख से आंसर करेंगे.
भाई हमारी जो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियस जो होते हैं, यू नो, दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द डेंसिटी। सभी उनमें जो न्यूक्लियस में जो मास होता है ना, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यू कैन नॉट से दैट कि इट इज डिपेंड अपॉन द डेंसिटी, ठीक है। तो मास कुछ भी हो, डेंसिटी सभी न्यूक्लियस की इक्वल ही होती है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। ओके, व्हाट विल बी द रेशियो, 1:1। When we move magnetic compass from point P to Q, then which of the following is true? यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको एक सोलेनॉइड दिख रहा है और कह रहे हैं कि जब हम P से Q की तरफ, when we move magnetic compass from P to Q, ठीक है, जब हम P से Q की तरफ मैग्नेटिक कॉम्पास मूव करेंगे, which of the statement is true? स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक निडल at P and Q will be in the same direction. Deflection of the magnetic needle at P and Q will be in the opposite direction, perpendicular to each other, or 45-degree inclined. देखो यहां पे क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्यों, क्योंकि हमारे इक्वेटर पे और पोल पे जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ना, दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर इज एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड एट द पोल। तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटर पे और जो हमारे पोल पे मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, दैट्स व्हाई दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। Now we have assertion and reasoning question. Read question number 13. Total energy of an electron in hydrogen atom is negative. The centripetal force is provided by electrostatic force. अभी कैसे मैंने आपको, see, whenever you have to solve assertion and reason question, try to read first statement and identify whether both the statements are correct or not. Once you get the statement about, then try to find out whether they are related or not. तो अभी इनको पढ़िए। So guys, total energy of an electron in hydrogen atom is negative. तो हमारे हाइड्रोजन एटम हो या कोई भी एटम हो, इलेक्ट्रॉन तो हमेशा नेगेटिव ही होता है। स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज आल्सो करेक्ट, राइट। सो दोनों स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी, ओके। द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास to air is minimum for violet air color. The wavelength of blue light is greater than the light of other color. Again both the statement are correct, ठीक है। क्रिटिकल एंगल जो हमारी होती है, लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर,
दैट इज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, बिकॉज in case of total internal reflection only, the light passing from denser to rarer media, ठीक है। so the critical angle of light passing from glass to air is minimum for violet color, correct है। wavelength of blue light is greater than, correct, but not the explanation is correct, तो B। two light source emitting wave of similar wavelength are coherent, ठीक है। ये 14 में ना वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट का तो वेवलेंथ कम होता है, ग्रेटर देन रेड लाइट का सबसे ज्यादा होता है, ये तो कम है, रीजन फॉल्स है, ठीक है, रीजन इज फॉल्स, स्टेटमेंट इज ट्रू ओनली, ओके। या नाउ क्वेश्चन नंबर 15, टू लाइट सोर्स एमिटिंग वेव्स ऑफ सिमिलर वेवलेंथ आर कोहेरेंट। सो दो लाइट सोर्स जो है एमिटिंग द वेव्स ऑफ सिमिलर वेवलेंथ आर कोहेरेंट। Two light source emitting wave having zero or constant phase difference known as coherent sources। बताइए, पहला वाला तो स्टेटमेंट फिर से क्या लग रहा है आपको, करेक्ट है। टू लाइट सोर्सेज, एक लाइट सोर्स होती है वो कोहेरेंट आएगी ना, टू लाइट सोर्सेज एमिटिंग वेव ऑफ सिमिलर वेवलेंथ, ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। For 3-point charges to be in equilibrium, they must be collinear. One of the charges have different polarity than the rest of two. तो यहाँ पे भी आपका दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो ये तो थे आपके रीजनिंग वाले क्वेश्चंस। अब हम बात कर लेंगे सेक्शन बी की, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस आपने ऑप्शनल वाले जो है ना एमसीक्यू वाले, फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज गाइज, ठीक है। तो जितने भी एग्जाम्पल्स आपके यू नो एनसीईआरटी में गिवन है, इवन जो समरीज दिए होते हैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर, जस्ट रीड इट, read the summary as well. From there only, from the summary statement also you can get the questions in your MCQs, okay। Now let's go with section B। अभी देखो सेक्शन बी में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, थोड़े से हम कह सकते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। कह रहा है द एम्पलीट्यूड ऑफ magnetic field of a plane electromagnetic wave propagating along positive x-axis in vacuum is 510 nt, right, in k direction, and its angular frequency is 60 to 10 to the power 6 radian per second. Write the expression for electric field. नैनो टेस्ला दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या है, गिवन है 510 nt, नैनो ना, तो 510 इंटू 10 टू द पावर -9 टेस्ला। देन व्हाट इज गिवन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 60 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, 60 रेडियन पर सेकेंड गिवन है, राइट। तो अभी 60 रेडियन पर सेकेंड अगर यहाँ गिवन है, एज इट इज छोड़ देते हैं। राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी हमारी, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, वी नो दैट C इंटू बी नॉट, ये हमें पता है, हमारे ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, C इंटू बी नॉट। सो यू कैन से दैट दिस C इंटू बी नॉट इज इक्वल टू हाउ मच, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, इंटू B 10 to the power -9 इंटू 10 to the power -1, और इट इज 153। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 153 न्यूटन पर कूलम, ओके। नाउ व्हाट इज K, omega by C, so from here omega is given 60, speed of light
3 इंटू 10⁸ तो ये कितना आ जाएगा, ओमेगा बाई सी 20 आ जाएगा ये, ठीक है। दिस इज व्हाट 20 यू कैन से। सो नाउ E इज इक्वल टू व्हाट, जो इक्वेशन है हमारा रिलेशन होता है E इज इक्वल टू E नॉट साइन राइट ओमेगा टी माइनस के जी, ये होता है, अभी हमने E नॉट निकाल लिया 153 साइन ओमेगा कितना दिया है 60, तो 60 इंटू टी माइनस के 20 इंटू जी, ठीक है। तो आप जी की जगह एक्स डायरेक्शन में ये डायरेक्शन आ जाएगा आपका। सो सिक्सटी इंटू 10⁻60 माइनस 20, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट, इसको नोट कर लीजिए। Next, the following graph shows the potential difference across the terminal of a cell against the load current. क्या दिया है, ये ग्राफ दिया है, ठीक है। और आपको टर्मिनल, आपको फाइंड करना है द EMF ऑफ द सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। सो यू हैव टू फाइंड आउट द EMF and the internal resistance of the cell. So quickly find out guys, EMF and internal resistance. Load current is given and potential difference is given. Yes. तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं आपको क्वेश्चन में, दिस इज गिवन लोड करंट, ठीक है, एंड दिस इज गिवन पोटेंशियल डिफरेंस। पहला आपको बताना है ईएमएफ ऑफ द सेल, तो ईएमएफ ऑफ द सेल तो क्या हो जाएगा हमारा 6 वोल्ट हो जाएगा। व्हाई, बिकॉज व्हेन लोड करंट बिकम्स 0 तो ईएमएफ हमारा लोड करंट के इसके बराबर हो जाएगा 6 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस यू विल गेट विथ बाय द स्लोप, तो R इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। तो R इज इक्वल टू V बाई आई हो जाएगा। V इज वॉट 0 से 6, ठीक है, एंड I इज 12 to 0, तो 6 by 12 that is 1.2, that is 0.5, so resistance is 0.5। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। क्लियर, चलिए now let's solve question number 19. A charge Q is placed inside a sphere of radius A. तो एक चार्ज Q है, उसको एक स्फीयर रेडियस जिसका रेडियस A है उसमें हमने एक चार्ज Q रख दिया है, filled with water and another charge 2Q is placed inside a cube, और दूसरा चार्ज जो है उसको हमने क्यूब के अंदर रख दिया है, ठीक है। चार्ज 2Q is placed inside a cube of side 2A, जिसका साइड 2A है, which is in vacuum, इसमें अंदर वैक्यूम है, इसमें अंदर वाटर है। फाइंड द रेशियो ऑफ द फ्लक्स लिंक्ड विद द स्फीयर टू दैट लिंक्ड विद द ट्यूब। तो यहाँ पे आपको रिलेटिव परमिटिविटी ER वाटर की दी हुई है 80, ठीक है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द फ्लक्स लिंक्ड टू द स्फीयर टू द क्यूब। तो स्फीयर और क्यूब के बीच में रेशियो निकालना है।
कैसे होगा ये? अभी देखो यहाँ पे गॉसेस लॉ लगा देना। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फ्लक्स फॉर स्फीयर इज इक्वल टू Q by epsilon naught and ER because water is filled, and flux for cube is 2Q by epsilon naught, it is vacuum, तो ER लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ आपको क्या निकालना है? रेशियो निकालना है, सिंपली स्फीयर और क्यूब के रिलेटिव में निकालना है। तो फ्लक्स स्फीयर डिवाइडेड बाय क्यूब, Q बाई ER है 80 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा? Q बाई 80 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट 2Q, Q कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, 1 बाई 160. So this is the ratio between, so 1 बाय 160, ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 बाय 160. All right, so let's end the session here only, guys. In the next class we'll continue with the next question, like 20th क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं। टिल दिस मच ट्राई टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट। आज आपने जितने भी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन किया है, जस्ट ओपन द बुक, रिवाइज ऑल दोज टॉपिक्स। इनको एक बार आप एनसीईआरटी से रीड कर लीजिए, यू विल फाइंड कि डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं वहां से। ओके, सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, and in the next class we'll start solving question number 20. Okay, so let's end the session here only. Bye bye, take care. Any doubt, anyone? No? Okay, so bye bye, take care all of you. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।